How are you? I hope you all are well at home. Okay, let's start today's topic. Today our topic about rocks and minerals. It means today we will study about rocks and minerals. आज हम rocks and minerals के बारे में पढ़ेंगे. Yes friends, we all are living on earth. हम सब कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पर. And earth is made up of rocks and soil. और अर्थ किससे बनी है? rocks and soil से बनी है. In previous chapter, in previous videos, we studied about soil. What is soil? Uppermost layer of the earth is called soil. अर्थ की सबसे uppermost layer को हम क्या कहते हैं? soil. It is made up of gravel, clay particles, sand and humus. और ये soil किससे बनती है? ग्रेवल, सैंड और क्ले पार्टिकल के मिक्सचर से ये बनती है. एंड ग्रेवल, क्ले पार्टिकल्स एंड सैंड, these all are formed by the weathering of rocks. और ये सब किससे बनते हैं? रॉक्स की वेदरिंग से ही बनते हैं. Students, maybe you studied about 3 layers of rocks in SST. maybe आपने SST में अर्थ की 3 layers के बारे में पढ़ा होगा. There is 3 layers of earth: crust, mantle and core. It means हमारी अर्थ के 3 layers होते हैं. uppermost layer is crust, middle layer is mantle and innermost layer is core. Uppermost layer is made up of hard rocks and soil, that is known as crust. जो कि सबसे uppermost layer है जो hard rocks और soil से बनी होती है. In this chapter, students, we will discuss about rocks. What do you mean by rocks? Natural mass of mineral matter. Rocks क्या है? Natural mass of mineral matter. जो मिनरल मैटर होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, उन्हीं के गैदरिंग से, उनकी मास से क्या बनती हैं? रॉक्स बनती हैं. व्हाट आर रॉक्स? रॉक्स आर द नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर. मिनरल्स, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. मिनरल्स और रॉक्स क्या है? डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर में आपको मिल सकती है. It means all rocks and all minerals, they do not have same type of color, size and texture. They may be found in different color, size and texture according to arrangement, deposition of their atoms. उनके एटम्स के डिपोजिशन के अकॉर्डिंग उनका कलर, उनका साइज और टेक्सचर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है. What are minerals? मिनरल्स क्या हैं? Just I explained you. Rocks are made up of minerals. Rocks किससे बनी होती हैं? मिनरल्स से. It means what are rocks? Rocks are natural mass of mineral matter. It means rocks are made up of minerals. What are minerals? Naturally occurring inorganic solids. Minerals क्या हैं? Naturally मिलने वाले inorganic solids हैं जो नेचर में मिलते हैं हमें. नेचर में मिलने वाले inorganic solids हैं with a definite chemical composition, जिनका की केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? डेफिनेट होता है. एंड एन ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट, और उनके एटम्स का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में होता है और उसी के अकॉर्डिंग उनका टेक्सचर भी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. रॉक्स के बनने के अकॉर्डिंग, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. There are 3 types of rocks
ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उनके बनने के अकॉर्डिंग रॉक्स के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स. विच आर दीज? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. First of all, we will study about igneous rocks. Igneous rocks are formed by the cooling and hardening of hot molten rocks. Igneous rocks कैसे बनती हैं? Igneous rocks are formed by the cooling and hardening of hot molten rocks. जो कि हॉट मिडिल लेयर में हॉट मोल्टन रॉक्स होती हैं, हमारे अर्थ के मिडिल लेयर में हॉट मोल्टन रॉक्स होती हैं, उनके ऊपर आने से और उस मोल्टन रॉक्स के ऊपर आने और उसके कूलिंग और हार्डनिंग होने से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इग्नियस रॉक्स. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. Igneous rocks are formed by the cooling and hardening of hot molten rocks. The hot molten rocks are flows out through a volcano. और ये hot molten rocks जो कि मिडिल लेयर में होती हैं, ये किस तरीके से बाहर आती हैं? थ्रू volcanoes. वोल्केनो के थ्रू ये हमारे अर्थ सरफेस पर ये क्या होती हैं? बाहर आती है. Hot molten rocks when present inside the earth is called magma. और जो hot molten rocks जो अर्थ के, जब ये अर्थ के अंदर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? magma. It means hot molten rocks inside the earth known as magma. जो अर्थ, जब ये hot molten rocks अर्थ के अंदर होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? magma. But when it flows on the earth surface, it is called lava. लेकिन जैसे ही वोल्केनो के थ्रू ये अर्थ सरफेस पे आती हैं हॉट मोल्टन रॉक्स तो हम इसको क्या कहते हैं? लावा. Inside earth it is hot molten rocks called magma, and on the surface this hot molten rocks known as lava. जब यही hot molten rocks अर्थ के अंदर होती हैं तो हम इनको मैग्मा कहते हैं, और ये वोल्केनो के थ्रू जब ये बाहर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट लावा. वी कॉल्ड इट लावा. ओके. मैग्मा और लावा कूल्स डाउन एंड हार्डन्स. ये मैग्मा और लावा क्या होता है? अर्थ सरफेस पे आने पर ठंडा हो जाता है. कूल डाउन एंड हार्डन्स, और हार्ड होने लगता है, ठंडा होकर के हार्ड होने लगता है. टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स बनाने के लिए, इट मीन्स इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड और हार्डनिंग ऑफ मोल्टन रॉक्स. हॉट मोल्टन रॉक्स के कूल होने और हार्ड होने से जो रॉक्स बनती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? igneous rocks. Igneous rocks. About 90% of the earth crust is made up of igneous rocks. हमारे अर्थ क्रस्ट का 95% igneous rock से ही बना है. Igneous rocks contains many minerals like mica and feldspar. और ये कई प्रकार के मिनरल से, मैनी प्रकार के मिनरल से क्या होती है? इग्नियस रॉक्स बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल मीका, फेल्डस्पार. देन एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट, प्यूमिस, ऑब्सिडियन, बेसाल्ट. These are the example of igneous rocks. Once again I am repeating. Examples of igneous rocks are granite, pumice, obsidian and basalt. These are the examples of igneous rocks. Granite. It is very hard rock. Granite क्या है? सबसे hard rock है. It is very hard rock. It is formed by the slow cooling of magma below the earth surface. जब
मैग्मा वोल्केनो के थ्रू अर्थ सरफेस पे आने लगता है, तो अर्थ सरफेस से कुछ नीचे क्या होता है, जो गैप्स होते हैं उनमें ये मैग्मा क्या होने लग जाता है, कूल होने लगता है। और उसके कूल होने से और हार्डन होने से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट रॉक्स। विच टाइप ऑफ रॉक्स? ग्रेनाइट। It is very hard rock. It is formed by the slow cooling of magma below the earth's surface. It is rich in quartz, feldspar and mica. और ये किस मिनरल से रिच होती है? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मिका। इन रॉक्स में, ग्रेनाइट रॉक्स में सबसे ज्यादा कौन से मिनरल्स मिलते हैं? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मिका। It comes in many colors. It is used for making kitchen counter, floor, etc. ये ग्रेनाइट कई कलर में हमें क्या होती है, मिलती है, जो कि हम किस काम में लेते हैं? हम इसको, जो कि हमारी किचन का काउंटर होता है उसको बनाने के लिए, फ्लोर्स वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। वंस अगेन, ग्रेनाइट, इट इज वेरी हार्ड रॉक, ये सब बहुत ही हार्ड रॉक है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस। जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे आने लगता है तो उससे पहले जो ग्रूव्स होती हैं उनमें क्या वेंट्स होती हैं, उसमें क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। और वो कूल डाउन बहुत ही स्लोली होती है, बहुत उसका कूलिंग का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। उस प्रोसेस से बनने वाली रॉक्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग किचन काउंटर एंड फ्लोर्स एटसेट्रा। एंड इट इज रिच इन क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मिका। इन मिनरल से क्या होती है, ये रिच होती है। वी कैन से कि ग्रेनाइट में फेल्डस्पार, मिका, क्वार्ट्ज, ये मिनरल्स ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। देन प्यूमिस, इट इज लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक। प्यूमिस क्या होती है? लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक होती है। ग्रेनाइट डार्क कलर्ड इग्नियस रॉक है, बट प्यूमिस क्या है? लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक है। इट हैज मैनी होल्स विद आर फॉर्म्ड बाय द gases trapped in the lava at the time of its formation. और जब ये रॉक्स बनती है तो इस रॉक्स में बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं। Why these grooves formed? These grooves formed by the gases trapped in the lava at the time of its formation. जैसे ही लावा बाहर आता है वो कूल डाउन होने लगता है, उसी टाइम गैसेस उसमें क्या हो जाती हैं, उस मटेरियल में ट्रैप्ड हो जाती हैं। गैसेस उस मटेरियल में ट्रैप्ड होने से और कूल डाउन होने से इस टाइप की रॉक्स बनती हैं। इट इज लाइट वेटेड एंड कैन फ्लोट ऑन वाटर। और ये इसमें ग्रूज होने की वजह से, गैस के ग्रूज होने की वजह से ये क्या है, लाइट वेटेड होती है। एंड इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, और ये वाटर पे फ्लोट कर सकती है। इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग द फ्लोर्स, और इसको फ्लोर्स के पॉलिशिंग में इसको काम में लिया जाता है। फ्लोर्स के पॉलिशिंग में इसको काम में लिया जाता है। डेंटिस्ट यूज पाउडर्ड प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग आवर टीथ, और डेंटिस्ट इस प्यूमिस के जो पाउडर को ही हमारे टीथ को क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए यूज में लेते हैं। इट मीन्स प्यूमिस पाउडर इज यूज्ड टू क्लीन आवर टीथ, टू पॉलिश आवर टीथ बाय डेंटिस्ट। देन नेक्स्ट इज ऑब्सिडियन। नेक्स्ट इज ऑब्सिडियन। इट इज शाइनी एंड स्मूथ इग्नियस रॉक्स। ऑब्सिडियन क्या है? शाइनी और स्मूथ रॉक है। इट इज फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा।
ये लावा के क्विक कूलिंग से बनती है. जस्ट वी डिस्कस्ड ए ग्रेनाइट formed by the slow cooling of magma, but obsidian formed by the quick cooling of lava. लावा के क्विक कूलिंग से ऑब्सिडियन रॉक्स बनती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और ये ज्वेलरी बनाने के काम में ली जाती है. इट मीन्स ऑब्सिडियन रॉक्स, मोस्ट ऑफ ऑब्सिडियन रॉक्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कटिंग टूल्स. इसके अलावा हम इसको कटिंग टूल्स के रूप में टूल्स बनाने के लिए भी हम यूज में लेते हैं. बिकॉज दे आर हार्ड एंड दे हैव शार्प एज. सो वी यूज टू मेक कटिंग टूल्स. इसलिए हम इनको कटिंग टूल्स बनाने के भी हम क्या कर लेते हैं, काम में लेते हैं. Then next, basalt. It is formed by the cooling of lava. बेसाल्ट किससे बनता है, लावा की कूलिंग से बनता है. ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर. इट इज डेंस एंड डार्क, और ये कलर में कैसे होती हैं, डेंस और डार्क होती हैं. एंड इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, और इसको रोड बनाने के काम में लिया जाता है. ग्रेनाइट among the igneous rocks, examples of igneous rocks are granite, pumice, obsidian and basalt. We discussed about these all examples, these all types of igneous rocks. Granite is formed by the slow cooling of magma below the earth surface. क्यों, हमने अभी बात की थी, अभी डिस्कशन किया था कि अर्थ सरफेस के नीचे हॉट मोल्टन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, मैग्मा. तो ये ग्रेनाइट रॉक्स अर्थ क्रस्ट के नीचे ही क्या होती हैं, बनती हैं मैग्मा की कूलिंग होने पर. मैग्मा के स्लो कूलिंग होने पर ग्रेनाइट बनती है. इसीलिए क्या ये रॉक्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, और इसको हम क्या कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको काम में लेते हैं. Pumice, obsidian and basalt, these all rocks are formed on the surface of the earth. ये सारी बाकी की 3 टाइप्स की रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्या है, अर्थ सरफेस पे बनती है. ऑन द कूलिंग, बाय द कूलिंग ऑफ लावा, लावा की कूलिंग होने पे. अभी हमने बात की थी अर्थ सरफेस के नीचे मैग्मा, और जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर वो हॉट मोल्टन रॉक्स आ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लावा. तो लावा की कूलिंग होने पर प्यूमिस, ऑब्सिडियन और बेसाल्ट रॉक्स बनती हैं. बट इनको हम डिफरेंट नेम उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दिया है. कि जैसे ही जिस लावा के कूलिंग होते टाइम जब वो गैसेस को ट्रैप कर लेती है, उससे जो रॉक्स बनती है उसको हम प्यूमिस रॉक्स कहते हैं. और जो स्लो कूलिंग से क्विक कूलिंग से बनती है उनको ऑब्सिडियंस कहते हैं. और जिन लावा के कूलिंग होने पर जो रॉक्स बनती हैं जो कि डार्क कलर में होती हैं, डेंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. नेक्स्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड metamorphic rocks we will discuss about these in next video.